سورہ 5 کی المائدہ آیت 51 کو ذرا بتائیے. پہلے اپنا پرچہ دیجیے. سبھی کو جے ہند، وندے ماترم، جے انسانیت، جے مانوتا، بھارت ماتا کی جے. جی سر، کون سی آیت پوچھی؟ میں سورہ 5 المائدہ آیت 51. ٹھیک. سب سے پہلے میں سبھی پدھارے ہوئے ان کا ہاردک سواگت کرتا ہوں. دوسری بات، میں ایکس مسلم علیہ ہوں. میرا پورا نام عزیز الحسن ہے اور میں ایکس مسلم ہوں. ایکس مسلم اس لیے ہوں کیونکہ میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا ہے. چھوڑا اس لیے ہے، پڑھ کر، جان کر، سمجھ کر، ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کر اور ترک کے بیس پہ اسلامک آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا ہے سر. تو یہ جو آپ نے آیت پوچھی، سورہ 5 المائدہ آیت 51، اے ایمان والو، یہودوں نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کافر ہو، مرتد ہو، یا پھر جو بھی اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے، اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ اپنا. کیوں نہیں بناؤ؟ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو یہ تو بہت سارے مسلمان دوست بنا کے رکھتے ہیں ہندوؤں کو، تو وہ تو سارے کیا قرآن کو فالو نہیں کر رہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں سر، دیکھیے قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں کہ کافروں کو اپنا متر نہ بناؤ. یہ بھی آیتیں لکھی ہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے. تو یہ کیا ہے سر؟ التقیہ ہوتا ہے. اچھا، ہاں، التقیہ کیا ہوتا ہے؟ التقیہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جس دیش میں رہتے ہیں، جیسے مان کے چلیے ہندوستان کیا ہے سر؟ اسلام کے انوسار دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں ہے. دارالاسلام وہ ہوتا ہے جہاں پہ اسلام کا قانون نازل ہو. تو یہ بھارت دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے. تو جہاں پر غیر مسلموں کا جو ہے قانون لاگو ہو، وہ دارالحرب ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ قرآن ہدایت دیتی ہے کہ آپ جو ہے ان میں ہی رہیے اور التقیہ کیجیے، یعنی منہ پہ کچھ اور اندر کچھ اور، بس ٹھیک ہے. مطلب صاف صاف آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایسا کہہ رہی ہے کہ مطلب کچھ اندر کچھ رہو اور باہر کچھ اور رہو. ہاں، جب اسلام پہ بات آئے اور جب اسلام کا قانون جہاں نازل نہ ہو تو وہاں پر ایسا آپ کر سکتے ہیں. تو جب اللہ ستیہ ہے تو ستیہ بات کیوں نہیں کہتے؟ ستیہ کہنے میں ڈر کیسا لگا ہے؟ صرف جان کی ڈر سے کر رہے ہیں کیا؟ نہیں سر، اس میں تو یہی کہا جائے گا بے شک کہ جو اسلام ہے وہ آئیڈیالوجی میں جو ہم نے یہ 24 آیتیں لے کے بیٹھے ہیں، تو یہ 24 آیتوں پر بھی دلی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا تھا کہ آیتیں یہ گھرنا پھیلاتی ہیں اور یہ ساری وہ چیزیں پھیلاتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا بھی دوں گا. FIR نمبر ہے بھارتیہ دنڈ سنہتا کی دھارا 153A اور 295A کے تحت درج کیے گئے ہیں معاملے. ہاں، دلی کورٹ میں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1986 کی بات ہے. تو تب سے پھر کیا ہوا؟ اس میں ججمنٹ دیا گیا تھا اور اس میں صاف صاف یہ بھی لکھا گیا تھا اس میں کہ اس طرح کی اس میں سرکار کا فیصلہ دیکھیے یہ آیا تھا. اور اس کے میں بتا دیتا ہوں مجسٹریٹ کون تھے. یہ JS لوہاٹ دوارا 31 جولائی 1986 کو سنائے گئے فیصلے میں وستار سے سمجھایا گیا تھا. یہ فیصلہ دلی پولیس دوارا 2 ہندوؤں ایوم اندر سین اور راج کمار آریہ کے خلاف دنڈ سنہتا کی دھارا 153A اور 295A کے تحت درج کیے گئے تھے مقدمے. اور اس میں کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا یہ آیتوں کے اوپر. نیائک فیصلے نے اسپشٹ روپ سے اس درشٹیکون کا سمرتھن کیا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں سامپردائک ہنسا پیدا کرنے کی چھمتا رکھتی ہیں. یہ نیائک فیصلے نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں سر. اور مسلم سموداؤں کے نیتاؤں دوارا ایتہاسک فیصلے کے خلاف کوئی اپیل بھی دائر نہیں کی گئی سر. واپس سے اپیل اس کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے کہیں؟ نہیں کہیں نہیں کیا گیا. تو یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے؟ نہیں، دلی کورٹ کا ہے سر. دلی کورٹ. سول. کیا وجہ رہی کہ آپ کو آنا پڑے؟ آپ کا پرچہ اور آپ اپنے آپ کو کس طرح سے پرستت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جنتر منتر پہ آنے کی بات جو ہے، میرا وہ بھی بتاؤں گا. پہلے میرا چھوٹا سا ایک پریچے یہ ہے. میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. میرا نام سرفراز احمد، ٹھیک ہے. اور ایک دم کٹر ٹپیکل مسلم جیسے ہوا کرتے تھے، تبلیغ جماعتی والا مسلم رہا ہوں. ٹوپی والے؟ ہاں، ٹوپی والے تو سبھی ہیں، لیکن تبلیغ جماعت والا مسلم رہا، بہت زیادہ کٹر مسلم رہا. اور چلتے رہے، فالو کرتے رہے. لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن پڑا، لاک ڈاؤن ہوا تو وقتی وقت تھا ان دنوں، تو
सोचना समझना शुरू किया, क्योंकि इस्लाम में सवाल नहीं कर सकते। इस्लाम में शराब और सुअर ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। तो जब सोचना शुरू किया और दिमाग खुलना शुरू हुआ, तो देखिए ये नहीं कि आप इस्लाम को छोड़ते हैं। अगर आपने, मैं कहूँ, ये पकड़ा, इसे छोड़ा, तो आप फिर से इसको उठा भी सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में है ना। आप सुधार करना चाहते हैं? अभी आता हूँ इस बात पर। जब इस्लाम जैसे से ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। तो जैसे ही आपको ज्ञान हो गया, समझ में आ गई कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल, जिनके सदक़े में ये पूरी कायनात बनी है, और वो पैगंबर की उनकी सीरत क्या है, उनकी सिफात क्या है, उनका किरदार क्या है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो तब आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। तो आपने पूछा कि आपको पहले तो बता दूं जंतर मंतर पर क्यों है। देखिए, कुरान कई बार दुनिया भर के कोर्ट में जा चुका है, अलग अलग कोर्ट में जा चुका है, लगभग जो भी सेकुलर गैर मुस्लिमों के देश हैं, लेकिन हर जगह से कुरान को मतलब दूसरा पक्ष जीत गया। हमारी दुनिया में कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकी, और ये पहला एक मौका है, जितने भी लोग सुनने वाले हैं या नहीं हैं, और लोग आएंगे और आ रहे हैं, जब हम कुरान की एक आयत को भी आप लेकर बैठे हैं तो पूरे कुरान को, और यहाँ पर हम कुरान की 24 आयतें लेकर बैठे हैं, यानी कि कुरान अब मस्जिद से, मदरसे से निकल के बाहर अब रोड पे आ चुका है। जंतर मंतर पे डिस्कस होगा? हाँ जी, हम तो खुला चैलेंज करते हैं, आइए हमारे सामने बैठिए, बात कीजिए। हमारे एक एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक, उन्होंने तो अभी 6 तारीख को एक प्रोग्राम रखा था डासना मंदिर में, और इन्हें कई मुफ्तियों को, कई मौलवियों को खुला चैलेंज किया था। इसमें ओवैसी साहब के लिए भी कहा था तुम भी आ जाइए, इसमें महमूद मदनी, अरशद मदनी के लिए कहा था आ जाइए। आपकी तरफ के भी लोग रहेंगे, हमारी तरफ के भी लोग रहेंगे, और डिसाइड कौन करेगा, कौन जीता कौन हारा, वो AI डिसाइड करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, वो ना तुम्हारा होगा ना हमारा होगा, तीसरा पक्ष वो अपने आप रखेगा। तो एक भी नहीं आया। अच्छा, बहुत सारी आपने आयतों का जिक्र किया है, जैसे सूरा 4 निसा आयत 56, क्या है ये, क्या कह रहे हैं आप? इस आयत का मतलब क्या है? देखिए, जो सूरा 4 है ये निसा, इसकी 56 आयत जो है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें जरूर अनकरीब आग में दाखिल करेंगे, जिसे आग मतलब नारे जहन्नुम बोला जाता है, यानी जहन्नुम में डालेंगे, इनकार करने पर दाखिल करेंगे। और जब उनकी खालें जल जाएंगी, मतलब आग में डाला आपने, तंदूरी बना लिया सेक के, जिसका तंदूर बन गया, चिकन तंदूरी हो गया, तो फिर अल्लाह उनकी दोबारा से खाले ला देगा, फिर से वो सजा भुगत देगा, और हमेशा हमेशा की जिंदगी में ऐसा ही रहेगा। अब एक बात बताइए, आपने जिंदगी जी 50 साल की, 50 साल आपने, चलो मान लीजिए इस्लाम के हिसाब से कहते हैं ठीक है 50 साल आपने खुदा को नहीं माना, तो 50 साल की तक ही सजा मिलेगी ना। लेकिन वो हजारों लाखों करोड़ों साल जहां पर गिनतियां ही फना हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो क्या? और कोई नहीं जानता हो, जैसे किसी को पता ही ना हो इस्लाम क्या है, कोई जंगल में आदिवासी है, तो उसके लिए क्या है? ये बड़ा सवाल है। जो इधर अंडमान निकोबार के पास एक आइलैंड है, वहां पर आदिवासी रहते हैं, वहां पे मेरा सबसे सवाल है भाई, और इस्लाम क्योंकि सबसे बड़ा दावा इस्लाम करता है अपनी पुख्तगी का, अपनी मजबूती का, कि कोई दीन है तो यही दीन है। तो भाई जब उन तक ना तो वो तो हमारी भाषा जानते हैं, ना वेशभूषा जानते हैं, ना अल्लाह को जानते हैं, ना मोहम्मद को जानते हैं, ना कलमे को पहचानते हैं, तो फिर ये बताओ भाई उनका क्या होगा? वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे? अगर इस्लाम इतना ही सच्चा दीन था तो अल्लाह ने उन तक क्यों नहीं पहुंचाया? एक गैर मुस्लिम जो है हमारे बीच रहता है, उससे तो चलो ये सवाल हो जाएगा, तुझ तक अल्लाह ने अपना दीन तो पहुंचाया था, लेकिन उस तक तो पहुंचाया भी नहीं, इस पर क्या कहेंगे? सूरा 4 की निसा आयत 89 के बारे में क्या कहेंगे आप, ये जो आपने लिखा हुआ है? अच्छा, कह रही है कि वो तो ये चाहते हैं कि जैसे काफिर हुए, काश कि तुम भी वैसे ही काफिर हो जाओ, हाँ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ। इसका मैं बाद में बताऊं, पढ़ लूं पूरा। एक जैसे हो जाओ तो बस तुम उनमें से उस वक्त तक दोस्त ना बनाओ जब तक अल्लाह की राह में हिजरत ना करें, यानी कि जब तक वो प्रॉपर मुसलमान ना हो जाए तब तक। किसके बारे में कहा गया है? ये गैर मुस्लिमों के लिए, और इनकी भी अलग कैटेगरी है। एक हो गया काफिर। काफिर मतलब ये मौलवी यहाँ के बड़ा बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं जी काफिरों के लिए कहीं तो कुरान में आयत, हिंदू किसी को तो मानते हैं, काफिर मतलब नास्तिक है। अरे भाई
काफिर मतलब नास्तिक, लेकिन हिंदू कहते हैं मूर्ति पूजक, कहते हैं मुशरिक। मुशरिक की भी सजा वही है, मूर्ति पूजक की भी सजा यही है। तो फिर काफिर में और मुशरिक में फर्क क्या बचा? और एक होता है फिर मुनाफिक, जो इनके दबाव में आके कलमा उसने पढ़ लिया लेकिन अंदर से फॉलो नहीं करता, तो मुनाफिक भी जहन्नुम में जाएगा। फिर एक हो गया मुर्तद, जो हम मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम हो गए, तो हम भी जहन्नुम में जाएंगे। चारों की टोटल सजा एक ही है। तो हम लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, अगर दोस्ती कर ली तो फिर तुम भी हम में से ही शामिल हो गए। अगर आज ये बात इनको मुसलमानों को समझाएं अगर आज इन मुसलमानों को, भाई तुम नहीं ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मक्की इस्लाम फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं बैनर इधर, ये जो है इसे ठीक भी करा देना बैनर को जरा। तो इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, तुम्हें मालूम नहीं कौन सा, हाँ इधर है, मुझे लिखा हुआ है काफिर नजस है। सूरह तौबा में 28 नंबर की आयत है ये। हाँ, नजस का मतलब क्या होता है? 28 नजस मतलब कहते हैं पोटी को, मलमूत्र को, जो आप अपने अंदर से निकालते हैं। मतलब आप इस्लाम को नहीं मानते तो आप नजस है, मलमूत्र हैं, ये कह रहा है कुरान। सूरा 4 की निसा आयत 101 क्या कहती है, ये आपके अनुसार? देखिए इसमें लिखा, जब तुम पूरे मुल्क में सफर करते हो तो नमाज कसर में तुम पर कोई गुनाह नहीं। कसर कहते हैं नमाज को घटा देना, सफर कर रहे हो, सफर के दौरान तुम पर कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें यकीनन परेशान करेंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। चलो यहाँ तो मैं इस आयत से सर्टिफाई हो जाता हूँ कि तुम्हारे दुश्मन तुम पे हमला करेंगे, इसलिए आधे नमाज पहले पढ़ लो, आधे बाद में पढ़ लो, नमाज घटा दो, वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो ये है सूरह तौबा की, यहाँ पर जो आयत नंबर 5 लगी हुई है, हाँ 9 की 5, ये क्या कह रही है भाई साहब? ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, टोटल इसी आयत को फॉलो किया गया है। कुरान ऑर्डर दे रहा है टेररिस्ट बनने का, घात लगाकर बैठो, उनकी घात में बैठो, साफ तौर से ये रहा। फिर जब हुर्मत के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो, घेरो, हर रास्ते पर उनके घात लगाकर बैठो। अगर वो तौबा कर ले, नमाज अदा करे, ज़कात अदा करे, तो फिर उन्हें छोड़ दो, आजाद कर दो। निसंदेह अल्लाह बहुत बख्शने वाला, माफ करने वाला। अरे यार एक बात तो बता दो कि फिर उन्होंने नमाज अदा करनी कायम कर दी, हाँ ये सब चीजें, फिर तो मुसलमान हो गए ना, अल्लाह तभी माफ करेगा जब मुसलमान होंगे। तो क्या कुरान खुद ऑर्डर दे रहा है। अच्छा एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर हम कभी भी मुसलमानों के विरोधी बिल्कुल भी नहीं रहे। जैसे हम हैं मुसलमान वैसे हिंदू, वैसे सिख, वैसे जैन। गुंडे तो बदमाश, वो तो हर धर्म में, हर मजहब में पाए जाएंगे, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो तो हर जगह पे। लेकिन यहाँ पर जो कुरान खास तौर से ये डाल रहा है दिमाग में, मुसलमानों में कमी नहीं। जब तक हम छोटे थे तो हमसे क्या कहा जाता था, नहीं जी मुसलमान सही, मुसलमान गलत है, इस्लाम सही है, ये मुल्ला गलत है, कुरान सही है। लेकिन नहीं, ये अब पता चला गलत मुसलमान नहीं है, गलत मुल्ला नहीं है, गलत इस्लाम है। ये टीचिंग, ये सब कुछ इस्लाम में मौजूद है। अब मैं चाहूंगा नन्या कुछ बोले। आप अपना परिचय दीजिए और जैसे सूरह 5 की अल मैदा आयत 51 को जरा बताइए। पहले अपना परिचय दीजिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत, जय मानवता, भारत माता की जय। जी सर, कौन सी आयत पूछी? मैं सूरह 5 अल मैदा आयत 51। ठीक है। सबसे पहले मैं सभी पधारे हुए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, मैं एक्स मुस्लिम अने हूँ। मेरा पूरा नाम अजीज़ुल हसन है और मैं एक्स मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है। छोड़ा इसलिए है, पढ़कर, जानकर, समझकर, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर और तर्क के बेस पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है सर। तो ये जो आपने आयत पूछी, सूरह 5 अल मैदा आयत 51, ए ईमान वालों, यहूदों नसरानियों को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि काफिर हो, मुर्तद हो, या फिर जो भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, इस आयत में ये कह रहे हैं, उनको दोस्त ना बनाओ अपना। क्यों नहीं बनाओ?
क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ये तो बहुत सारे मुसलमान दोस्त बना के रखते हैं हिंदुओं को, तो वो तो सारे क्या कुरान को फॉलो नहीं कर रहे? क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं सर, देखिए कुरान में और भी आयतें हैं कि काफिरों को अपना मित्र ना बनाओ, ये भी आयतें लिखी हैं, ऐसा नहीं है, कुरान में है। तो ये क्या है सर, अल तकैया होता है। अच्छा, हाँ, अल तकैया क्या होता है? अल तकैया ये होता है कि जब हम जिस देश में रहते हैं, जैसे मान के चलिए हिंदुस्तान क्या है सर, इस्लाम के अनुसार दारुल हरब है, दारुल इस्लाम नहीं है। दारुल इस्लाम वो होता है जहाँ पे इस्लाम का कानून नाजिल हो। तो ये भारत दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब है। तो जहाँ पर गैर मुस्लिमों का जो है कानून लागू हो, वो दारुल हरब होता है। तो वहाँ पर ये कुरान हिदायत देती है कि आप जो है इनमें ही रहिए और अल तकैया कीजिए, यानी मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और, बस ठीक है। बस मतलब साफ साफ आप कह रहे हैं कि कुरान ऐसा कह रही है कि मतलब कुछ अंदर कुछ रहो और बाहर कुछ और रहो। हाँ, जब इस्लाम पे बात आए और जब इस्लाम का कानून जहाँ नाजिल ना हो तो वहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं। तो जब अल्लाह सत्य है तो सत्य की बात क्यों नहीं कहते? सत्य कहने में डर क्या सा लगा है? सिर्फ जान की डर से कर रहे हैं क्या? नहीं सर, इसमें तो यही कहा जाएगा बेशक कि जो इस्लाम है वो आइडियोलॉजी में जो हमने ये 24 आयतें लेके बैठे हैं, तो ये 24 आयतों पर भी दिल्ली कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि आयतें ये घृणा फैलाती हैं और ये सारी वो चीज़ें फैलाती हैं। मैं आपको ये बता भी दूंगा, FIR नंबर है भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत दर्ज किए गए हैं मामले, हाँ, दिल्ली कोर्ट में। ये कब की बात है? ये 1986 की बात है। तो तब से फिर क्या हुआ? इसमें जजमेंट दिया गया था और उसमें साफ साफ ये भी लिखा गया था इसमें कि इस तरह की इसमें सरकार का फैसला देखिए ये आया था। और इसके मैं बता देता हूँ मजिस्ट्रेट कौन थे। ये JS लोहाट द्वारा 31 जुलाई 1986 को सुनाए गए फैसले में विस्तार से समझाया गया था। यह फैसला दिल्ली पुलिस द्वारा 2 हिंदुओं एवं इंद्रसेन और राजकुमार आर्य के खिलाफ दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत दर्ज किए गए थे मुकदमे। और उसमें कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था ये आयतों के ऊपर। न्यायिक फैसले ने स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि कुरान की कुछ आयतें सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने की क्षमता रखती हैं। ये न्यायिक फैसले ने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं सर। और मुस्लिम समुदायों के नेताओं द्वारा ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कोई अपील भी दायर नहीं की गई सर। वापस से अपील, इसको चैलेंज नहीं किया गया है कहीं? नहीं, कहीं नहीं किया गया सर। तो ये फैसला हाई कोर्ट का है? नहीं, दिल्ली कोर्ट का है सर। दिल्ली कोर्ट, सिविल कोर्ट का है। सिविल कोर्ट का है। आप थोड़ा परिचय देंगे अपना, कुछ कहना चाहेंगे भाई? आपका क्या सफर रहा, क्यों एक्स मुस्लिम बन गए आप, ऐसा क्या हुआ? जी, मेरा नाम वासिद है और मैं यूपी के रामपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। जी, मेरा भी कुछ हद तक ये इस्लाम के अंदर जो कुछ ऐसी बातें नज़र आई जिससे मैंने भी फॉलो करना तो लगभग कम ही कर दिया, बंद ही कर दिया है। जैसे कि कट्टरवाद को लेकर के और छोटे बच्चों के साथ में शादी तो आप करने क्या कहलाए जाएंगे? मुर्तद कहलाए जाएंगे, मुशरिक कहलाए जाएंगे? मुर्तद ही कहलाए जाएंगे, मुशरिक कह दो या मुर्तद कह दो। नहीं, मुशरिक तब मूर्ति पूजा वगैरह कुछ हो। चलिए आप पर ही आ जाते हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए कि भाई आप ये सब सारी चीजें कह रहे हैं तो आपके ऊपर तो फिर फतवा जारी हो जाएगा। क्या आप अपने आप को मुसलमानों से अलग समझते हैं? स्मॉल माइनॉरिटी हो गए हैं क्या? और कितने हैं आप संख्या में? देखिए, पहले आपने कहा कि फतवा, अब वो दौर चला गया। अच्छा, जब खलील मियाँ फाख्ते उड़ाया करते थे, समझे? डर नहीं लगता आपको? डर के इतनी जिंदगी जी है इस्लाम में, डर कर तो पूरी जिंदगी जी है। अल्लाह का डर, जहन्नुम का डर, मोहम्मद का डर, कहीं वो नाराज ना हो जाए, ऐसी कोई गुस्ताखी ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए। हाँ, यही तो डर के तो पूरी इस्लाम में जिंदगी जिए थे। वो डर जो था ना कि कयामत तक आप जहन्नुम में जलेंगे, उसमें जलेंगे, ये जलेंगे, अगर जरा सा भी शिर्क हो गया फिर तो जन्नत में जाने का सवाल नहीं। उस डर से तो कम से कम भाई साहब ये डर बहुत ही छोटा सा डर है, इतना सा डर है। शिर्क की बात बहुत होती है, जरा समझा दीजिए शिर्क क्या होता है? शिर्क की बात यह है, अल्लाह के सिवा अगर आपने किसी और को मान लिया। अच्छा, क्योंकि जो अजान होती है ना कि ला इलाहा, अजान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के।
مطلب عبادت کے کوئی یوگیہ ہے جس کی عبادت کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے. یہ اس اذان بھی صاف طور سے کہہ رہی ہے اشہد لا الہ الا اللہ. ہاں میں گواہی دیتا ہوں. تو کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مان رہے تو آپ کا شرک ہو گیا. اور اللہ ایک دم سمجھ لیجیے ایسا ہے جیسے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے نا, ارے تو نے اس کی طرف کیوں دیکھ لیا تھا, آپ لڑنے لگیں گے. یا گرل فرینڈ لڑنے لگے گی بوائے فرینڈ سے, تم نے اس لڑکی کو کیوں دیکھ کر اسمائل کیوں کی تم نے دیکھ کر. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی مندر کے سامنے سے گزرے بس یوں کر دیا تو شرک ہو گیا آپ کے اوپر. اچھا آپ سر نہیں جھکا سکتے, لیکن بہت سارے نکل گئے. بہت سارے مسلم لوگ تو سب کی عزت کرتے ہیں, سب کو برابر سمان دیتے, تو کیا وہ شرک کر رہے ہیں, وہ جہنم میں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب قرآن کے حساب سے آپ کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو بھی برابر کا عہدہ دے تو وہ تو کہہ رہے ایشور اللہ ایک ہے. سر یہ ایک جو ہے نا, ہاں یہ جو ہے نا بڑی وہ گھٹی پلائی گئی ہے. ہندو کہہ سکتا ہے ایشور اللہ ایک ہے, کرسچن بھی نہیں کہتے, جین کہہ سکتے ہیں, بودھ کہہ سکتے ہیں, ہے نا, وغیرہ وغیرہ سب کہہ سکتے ہیں, لیکن اسلام میں نہیں. ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے کر گاندھی جی نے کہا, گاندھی جی نے کہا ایشور اللہ تیرے نام یہ مندروں سے تو بجا ہے, ذرا کسی مسجد سے مدرسے سے بجوا کر دکھا دیجیے. سیکولر بنیں گے تو صرف ہم ہی سیکولر بنیں گے, غیر مسلم ہی سیکولر ہوں گے. لیکن آپ غیر مسلم کہاں ہو, آپ تو ایکس مسلم ہو. نہیں ابھی تو غیر مسلم ہی ہو گیا نا, اسلام سے نکل گئے نا. اچھا ابھی تو جہنم کا ایندھن بن چکا ہوں. اچھا, ہاں یہ تو بہت ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یہ تو عربی میں ہے, تو آپ کو کیا عربی آتی ہے, کیا پتا. اچھا یہ بہت اچھا ان کا ہے, یہ بچ کے بھاگنے کا ایک گاؤں ہے, انہیں عربی نہیں آتی. ارے بھائی ایک بات بتاؤ, ہم آئنسٹین کی تھیوری بھی اپنی بھاشا میں پڑھتے ہیں. ایک انسان کو انگلش نہیں آتی, منشی پریم چند تو انگلش میں لکھتے رہتے, ہندی میں لکھتے تھے, تو انگلش والا منشی پریم چند کو نہیں سمجھے گا. تو کیا پتا کچھ لوگوں نے اس کا کیا بولتے ہیں انواد ٹھیک سے نہیں کیا ہو, اس لیے. اچھا ایک بات بتاؤ, پھر یہ کیا کتاب ہو جس کا انواد ٹھیک سے نہیں ہوا؟ تو کراؤ بھائی, انواد بھی تو تمہارے ہی ہیں, ترجمے تمہارے ہی ہیں, یہ ہمارے ترجمے تو نہیں ہے, یہ آیتیں ہم نے تو نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجیے 28 نمبر کی آیت جو نجس کہہ رہی ہے, کافی نجس ہے, ملموتر ہے. مطلب ایسی کوئی دنیا کی کتاب ہوگی جو کہے جو مجھے نہیں مانتے تو وہ سب ملموتر ہو گئے, وہ ٹٹی پیشاب پخانہ ہو گئے. کیا عربی جاننا کسی مسلمان ہونے کا پیمانہ ہے؟ کیول عربی جاننا؟ اچھا عربی جاننا اسلام میں کچھ نہیں ہے. اسلام میں صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اپنی پینسل چھلوا لی نیچے سے, ختم کرا لی, یعنی آپ اسلام میں داخل ہو گئے. اور خاص بات یہ, اسلام میں آؤ گے تو نیچے سے کٹو گے اور جاؤ گے تو اوپر سے کٹو گے. بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں آپ. لیکن یہ بتائیے کہ اتنی ساری آیتیں آپ نے لکھ رکھی ہیں, یہ ہم نے نہیں لکھی, یہ تو 24 آیتیں ہیں جو اس میں تھی, کچھ ہلکی کمزور بھی آیتیں ہیں جو کہ میں نے صرف وہی کوٹ کی, ورنہ تو اتنی آیتیں ہیں, اتنی آیتیں. مہیلاؤں کا سمان کہا, اگر ان 24 آیتوں سے ہٹ کے بات کروں, سورہ التوبہ کیا کہتی ہے؟ نہیں سورہ توبہ نہیں, سورہ البقرہ, یہ 223 آیت. مہلائیں بھی ہیں, کرپیا کوئی برا نہ مانے, لیکن جو لکھا ہوا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے, آگے سے گھسو یا پیچھے سے, مطلب ان نیچرل سیکس کر سکتے ہیں آپ. ان نیچرلی قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. جی قرآن کہہ رہا ہے. حدیثوں جو کہہ دیتے یہ کمزور ہے, یہ ضعیف ہے, جی ہم اس کو نہیں مانتے. قرآن کیا ہے, تجھے کیسے انکار کرو گے بھائی؟ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے. اسی سورہ نساء پڑھ لیں, سورہ نساء آیت نمبر 34, 34 نمبر آیت کہہ رہی ہے تو کچھ تو اچھا مارنے. بہت ساری چیزیں اچھی بھی تو ہوں گی, آپ اچھی اچھی چیزیں فالو کرو, خراب ہاں اچھی اچھی چیزیں تب تک تھی جب تک اسلام قابض نہیں ہوا تھا. اسلام کے دو پہلو ہیں, ایک ہے مکی اور ایک ہے مدنی. مکی وہ جب تک محمد صاحب طاقت میں نہیں تھے, محمد صاحب وجود میں نہیں تھے, تب تک تو مکی اسلام تھا. لیکن جیسے ہی طاقت میں آئے, جیسے ہی وجود میں آئے, پھر تو سب کا وجود ہی مٹا کر رکھ دیا. پھر تو سب کا وجود ہی مٹا کر رکھ دیا. تو آپ مکی والا فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ آدھا اسلام مکی کا تو ختم ہو گیا نا. آپ نے کہا ایک دیوار پہ یہاں لکھا جیسے کہ پیشاب کرنا منع ہے, ٹھیک ہے لکھا, لیکن دوسرا نے لکھ دیا کہ آ کے یہاں جائز ہے, تو پھر تو اپنے آپ ہی ختم ہو گیا نا بھائی. پہلے تو یہ لکم دینکم ولی دین اتری ہے, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. پھر جو دین کو نہ ماننے والے ہیں تو ان کا تو سیدھا سیدھا سروناش کی بات ہے, قتل و قتال کی بات آئی. اس میں آیتوں میں نہیں ہے. سورہ انفال کی 39 آیت کیا کہہ رہی ہے
मतलब काफिर जो है ये फितना है, फसाद ही अल्लाह की नजर में। तो इनका मतलब इनसे तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। अल्लाह की नजरों में कोई दीन है, कोई मजहब है, कोई आइडियोलॉजी है इस दुनिया को चलाने की, तो सिर्फ और सिर्फ वो इस्लाम है। तो सबको एक रंग में रखना चाहते हैं। सर एक ही रंग में रखना चाहते हैं, यही तो एक सवाल है कि भाई ऐसा कौन सा गुलशन, ऐसा कौन सा बाग है जहां पर एक ही रंग के सारे फूल हो और उन फूलों में सब में एक ही खुशबू हो। तो फिर ये आपस में क्यों झगड़ा होता है? अगर कुरान के अंदर है, कुरान में फॉलो करते हैं, तो ये अलग अलग फिरके बना रखे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो कम जानकारी है क्योंकि हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को उतना नहीं जानते, आप जानते हैं। फिर ये आपस में झगड़ा क्या है? देखिए बहुत गुड क्वेश्चन है आपका। आपस में झगड़ा क्या है? आपस में अरे कोई एक आध वीडियो बना लो सर जी, हमारी थी जो चैनल पे डाल दें, आपको काम किया था सर। सॉरी बीच में मैं बोला, ये कट कर देना। तो देखिए क्या है कि एक चीज जान लीजिए, एक शख्स है, एक बुजुर्ग इंसान, उसका बहुत बड़ा खानदान है और खानदान में उसने अच्छी शिक्षा दीक्षा लोगों की नजरों में रखी है। तो अब ये बताइए कि उसके मरते ही सब आपस में लड़ने लगे, मारने काटने लगे, प्रॉपर्टी पे, जमीन जायदाद पे, हुकूमत पे, अब मुखिया कौन बनेगा, तो क्या कहेंगे आप कि वो इंसान ही इस दुनिया में मतलब ऐसा अपने पीछे खानदान के पीछे नफरत छोड़कर गया है, उसकी परवरिश में ही ऐसा असर था। तो ये बेहतर फिरके तो मोहम्मद साहब ने जो कत्लो क़िताल किया, जो सारी चीजें की जिंदगी भर, जब वो नहीं रहे तो उनकी 3 दिन तक लाश भी सड़ती रही और ये खिलाफत के लिए जंग करते रहे, तो अपने पीछे वही सब चीजें छोड़कर गए थे ना। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ से पढ़ा है आप? सारी हदीसों में मौजूद है। हदीसों में जो हदीस में जो मोहम्मद साहब ने कहा, कुरान की आयतें वो जो अल्लाह ने कही। गलत भी तो है हदीस बहुत सारी। अच्छा गलत की बात है, आपको बता दूं, इनकी खास तौर से इसलिए हम कुरान की आयत कॉपियां लेके बैठे आए थे कि जहां पर बात आएगी हमारे पास मतलब थोड़ी सी इस नीचे गिरा रही है, इनसे बहस होगी। नहीं जी, ये ज़ईफ हदीस है, लंगड़ी लूली हदीस है, इसको हम नहीं मानते। तो लेकिन जो इनके मतलब की होगी वो पुख्ता हदीस होगी। जैसे आज ये कहते हैं गज़वा हिंद करना पाकिस्तान को, ठीक है, तो ये पाकिस्तानी नहीं कहते, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। ये सुन्नन नसाई की 3175 यानी 3175 हदीस में साफ लिखा हुआ 2 धड़े होंगे, एक जो ईसा के साथ होगा, ईसा आएंगे दुनिया में, और एक मोहम्मद का जो इसको फतह करेगा, जो हिंद को आक्रमण करेगा, एक जमात आक्रमण करेगी। तो वो जो साफ तौर से लिखा हुआ है, अगर मैंने इंडिया के मौलाना से पूछा, बोले नहीं ये ज़ईफ हदीस है। एक भी पाकिस्तानी मौलवी से कहला के दिखा दो ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ हदीस है। वो तो अभी कह रहे थे जब हमारी ये जंग छिड़ी थी, सीज फायर हो गया, तारिक मसूद साफ तौर से कह रहा, पाकिस्तानी गलत हो सकता है, क्या पता यहाँ के मुसलमान सही हो, ये वाले सही समझते हो इस्लाम को, इनका इस्लाम अलग है, उनका अलग है। क्योंकि यहाँ के लोग तो मिलकर रहते हैं सारे। अरे सर यहाँ पर इस्लाम की 3 चीजें हैं। एक मिनट देख लो इसको बस। आप बोलते रहिए। इस्लाम की 3 चीजें हैं, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब, दारुल अमन। दारुल हर्ब हो गया जहां पर जी काफिरी है, उनसे जंग करनी है, ठीक है, दारुल हर्ब। और दारुल इस्लाम जहां शरिया है, और एक है दारुल अमन। दारुल अमन मतलब कि ये दारुल अमन चल रहा है, जहां तुम्हारी तादाद कम है, गिनती कम है, संख्या कम है, वहां चुपचाप से सर झुका के निकल जाओ। इसे कहते हैं अल्तकैया करना। ये है सर। तो इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ पर दारुल अमन चल रहा है अभी, तो दारुल जब जैसे इनके सिर्फ नंबर का फर्क है। जो भाई भाई का नारा लगता है ना, यही भाई भाई का नारा पाकिस्तान में लगवाइए, बांग्लादेश में लगवाइए, यहाँ के लगाते फिर कहते नहीं चाहिए तो पाकिस्तान के हैं। अरे भाई पाकिस्तान के भी अलग से थोड़ी है, यहीं के तो गए हैं। इस्लाम तो एक ही है, कुरान एक ही है, नबी एक ही है, अल्लाह एक ही है। तो क्या ये इसके लिए जनसंख्या कानून आना चाहिए? क्या कह रहे हैं आप? वो तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ज्यादातर, इससे वो तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद की एक हदीस है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो, अपनी संख्या बढ़ाते चले जाओ। इसलिए पाकिस्तान के मौलवी ने तो बोला ओवैसी को अब अपने एक अलग देश की, एक अलग मुल्क की मांग कर लेनी चाहिए भारत से। इतनी सारी आप बातें कह रहे हो, आपको काउंटर कोई करता है क्या? कोई मौलवी आता है जो आपकी बातों को गलत साबित करे, या आप उसको चैलेंज करना चाहते हो?
मैं तो किसी के लिए भी दो सब्जेक्ट, हमारे जितने भी एक्स मुस्लिम है, खासतौर से हमारे एक एक्स मुस्लिम साहिल साहब है, उनका भी ये कहना है और मेरा भी ये कहना है कि एक दो सब्जेक्ट पर आप कभी भी बात कर लीजिए, अल्लाह को एक अच्छा अल्लाह साबित कर दीजिए, कुरान वाले अल्लाह को, और मोहम्मद साहब को ईश्वर के मैसेंजर तो बाद में हुए, आप सिर्फ इतना ही साबित कर दीजिए कि वो एक अच्छे भले इंसान थे। आपका नाम क्या है? सरफराज अहमद। कौन सा मजहब है? मजहब मैं पैदा हुआ इस्लाम में। इस्लाम में इधर इधर कौन सा इधर धर्म है? इधर इधर बैठ जाइए। अरे धर्म कौन सा? इस्लाम है जी। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम किसे कहते हैं? हाँ, बाद में बात कर लेना। तो क्या है कि जो सच है ना, सच को देखिए, मैं क्या, मैं भी इस्लाम में रहा हूँ, इस्लाम में मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हूँ, आप आइए बात कीजिए साफ तौर से। और मैं तो ये कहता हूँ, ये तो बेचारे पसमानदा मुस्लिम आते हैं, मौलवी जो मुफ्तियान है, ये जैसे अभी एक मुस्लिम शख्स आए थे, ये नाराज क्यों हो गए? देखिए दरअसल इस्लाम में सवाल नहीं कर सकते आप, अपने राम पर सवाल कर सकते हैं कि सीता माता को क्यों छोड़ा था, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं सवाल कर सकते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची आयशा से हम बिस्तरी कैसे की, वो जब वो 6 साल की थी तो उन्होंने शादी कैसे कर ली, 53 साल की उम्र 6 की थी, तो ये सवाल नहीं कर सकते आप। आपको कोई सुरक्षा चाहिए, क्योंकि आप ऐसी बातें करोगे तो आपको खतरा भी हो सकता है। जी खतरा तो पल पल है। इस्लाम छोड़ने का मतलब अपनी जान को हथेली पे रख के घूमना, यही है। तो क्या आप किसी चर्चा के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं? भाई इस पर क्या पता आप गलत हो, कोई आपको सुधार दे, ऐसा कुछ सोचते हैं? देखिए जब कोई इस्लाम को छोड़ता है तो उसके दिमाग में सवाल आते हैं शुरू में, और सवाल हमारे दिमाग में भी आए, और उन सवालों को हम लेकर पहुंचे मुफ्तियों के पास, मौलवियों के पास, अपने दोस्त अहबाब के पास कि ये तो मालूम क्या कह दिया कि ये रेड लाइन क्रॉस मत करो, इससे आगे मत बढ़ो, ये रेड लाइन है। जब नहीं माने तो ये भटक गया है, गुमराह हो गया है। कुरान को तो मीनिंग के साथ अकेले पढ़ने से भी नहीं देते, मना करते हैं, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। तो मतलब कुरान को समझाता भी कोई और है, कुरान का मतलब तो वो क्या पता कुरान सही हो, वो लोग गलत बता देते हो आप लोगों को। कुरान भाई कोई एक तर्जुमा पे तो टिक जाओ, आके एक ट्रांसलेशन पे आके टिक जाओ, जो तुम्हें पसंद का वो टिक जाओ, और सीधी सी बात है उसको भी छोड़ो ट्रांसलेशन को। आजकल तो आप कॉपी कीजिए अरबी को, उर्दू में तुरंत हो जाता है ट्रांसलेट, क्या कह रहा है उर्दू में, हिंदी में, जिस भाषा में भी चाहो अरबी को, उसमें देख लो क्या कह रहा है। कुरान को तो वर्ड टू वर्ड करेगा ना। कुछ कहना चाहोगे आप लोगों को जो देख रहे हैं? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस्लाम क्या है, दरअसल इसको आप समझिए, इसको आप जानिए, सही इस्लाम क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्स मुस्लिम हो जाइए, आप इस्लाम को छोड़ दीजिए, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मेरा केवल इतना सा कहना है, आप इस्लाम को, सही इस्लाम को समझ तो लीजिए। कुरान क्या कह रहा है, मोहम्मद क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, जो लिखा हुआ है वही बात कर रहा हूं, और वही बात जब जाकिर नायक कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची आयशा से शादी की क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह को आयशा से दीन का काम लेना था, तो जब वो ये बात कहेगा तो ये कहेंगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये इसी बात को इस तरह से कहेंगे, अल्लाह को नहीं दीन का काम लेना था। तो भाई सवाल तो उठता है, उसे अपनी बहन बेटी भी नहीं बल्कि पोती की उम्र की थी, पोती बना लेते हैं। अल्लाह तो तब भी दीन का काम हज़रत आयशा से ले सकता था। अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। तो अल्लाह को ही पता होगा क्या सही है क्या गलत है, आप क्यों सवाल कर रहे हो? अल्लाह को ही पता हो क्या पता सही है गलत है। आप अब आप बताइए ऐसे इंसान कोई भी दुनिया में हो, पीडोफाइल कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? अगर मैं जिस देश में रहता हूँ यहाँ संविधान है, हमने क्या डाला, बौद्धिक लेवल पे, और संवैधानिक रूप से, संविधान से हम दूर नहीं है, भटके नहीं है ना। उस समय संविधान कहाँ था? नहीं अब सुन लीजिए, मैं आज की बात बता रहा हूँ, जिसको ये आज भी कहते हैं नहीं सही है। अगर इस देश में इतनी 53 साल की बुढ़ा 6 साल की बच्ची से शादी करे तो वो जेल की सलाखों में होगा, कहाँ होगा? इस सवाल है आपसे। लेकिन उस समय थोड़ी ना ये कहा। अरे लेकिन उस समय को गलत तो कहोगे ना, हाँ ये गलत हुआ। उस समय सही था, आप गलत थे। उस समय कैसे सही हो जाएगा? सूरज तो सूरज, हर युग में सूरज रहा है, अंधेरा अंधेरा रहा है। बताइए आज के टाइम में आप कहेंगे नहीं कहेंगे कि हाँ यार उसे जेल की सलाखों में होगा नहीं होगा, वो कोई भी हो चाहे। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ,
वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में, जो लोग देख रहे हैं? देखिए, जो लोग देख रहे हैं, एक भाई साहब उधर बोल रहे हैं, मैं तो चाहूंगा उनसे आए बात करें, और तुम बात ना करो, बात करो, अपने मुफ्तियों को भेजो, अपने मौलवियों को भेजो। और मैंने यहाँ पर चैनल लगाए हैं, खास तौर से इसको जरूर कवर करना है, जो हमारे एक्स मुस्लिम चैनल साहिल, एक्स मुस्लिम एडम सीकर, एक्स मुस्लिम कुरान वाला, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, एक्स मुस्लिम यास्मीन खान, एक्स मुस्लिम सुल्तान हैरिस, एक्स मुस्लिम ओवैस इकबाल, एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत। हाँ, ये सारे चैनल हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं, जितने अमूमन लिखने होते मैंने थोड़े से इसमें दर्ज कर लिए। कहीं एक छोटा सा मेरा भी चैनल है जिसका नाम है ईमान वाला काफिर, और जो काफिरों के पास ईमान नहीं रहता अच्छा, ना। ईमान का मतलब ही बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा चलन है कि ईमानदार आदमी है, ईमानदार हम लोग अक्सर आम भाषा में भी कहते हैं, तो ईमानदार का मतलब क्या होता है? देखिए, ईमानदार क्या होता है, दरअसल जो हमारी भाषा में आ गया ना, निष्ठावान होना, ईमानदार होना, ये समझते हैं ना, दरअसल ये नहीं है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर विश्वास करना, कुरान पे यकीन रखना, ठीक है, कयामत के दिन पे यकीन रखना, अपने मोहम्मद साहब पे यकीन रखना, जो इस्लाम की चीजें, दोबारा मर के दोबारा जिंदा होना, कयामत दिन उस पे यकीन रखना, तो इसका नाम ईमान तो है। हम अपने धर्म पे अगर यकीन रख लें तो हम भी तो ईमानदार हो गए? नहीं, क्योंकि आपके पास तो ईमान ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, आप तो पेड़ों को पूज लेते हैं, उसको पूज लेते हैं, आप तो पानी की पूजा कर लेते हैं, सूरज को पूज लेते हैं, तो आपके पास ईमान कहाँ हुआ? मेरे नहीं, इस्लाम के तो हम मुताबिक। सब बेईमान हैं। तो आप सब बेईमान हैं, अभी हम भी बेईमान हो चुके हैं, सच्ची बात बोलकर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।